So good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're gonna continue our previous discussion on derivatives. So in the previous class of derivatives number one, we talked about the basic of derivatives. That what exactly are derivatives and why are derivatives so important. So that we try to understand. We also try to touch about the basics of derivatives. That how have been derivatives derived, and what exactly is the essence of these derivatives, that how are they extracted or derived from the spot market, or basically being derived as a derivative of being the equity shares in the market. So that we talked about. And further we talked about the concept of underlying asset. We talked about spot market. We talked about the futures market in which these contracts are traded. We also try to understand this in terms of a numerical manner. Also, we talked about both the futures and forward market, that what happens in futures and forward market. So both these markets are one and the same thing. But what happens in case of a future market, the future market is on a stock exchange. It is being traded on the stock exchange. But what happens in case of a forward market, it is over the counter. That is, it is not traded on the stock exchange. Up over the counter hai, so there can be the risk of counterparty loss also. And there can be risk of default also. But these risks, they won't be in the case of the future contracts, because the future contracts are being traded on the stock exchange. अब now the contracts are being traded on the stock exchange, तो वहां पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता. And अगर 0.1% कुछ गलत हो भी गया, तो then you have your SEBI, you have NSDL, CDSL, brokers, all these authorities are there for the rectification purposes. ठीक है, so that we try to understand. Also, we talked about hedging. Hedging is one of the most important thing for which these derivatives are used for. And today we have to talk about speculators and arbitrators in this very short session. Okay. So I'll just talk about hedging in quite brief, and that we had already discussed in the previous session. Hedging में हमने क्या समझा था? We try to understand कि यहाँ पे एक फार्मर है. फार्मर को लगता है कि उसकी वीट का प्राइस नीचे गिर जाए, एंड हो सकता है कि फार्मर को बहुत कम प्राइस मिले उसके लिए, बिकॉज फार्मर का पूरा जीवन अपनी क्रॉप के ऊपर होता है. एक जगह है बेकर, जो इस फार्मर से अपना की वीट खरीदता है. बेसिकली दिस बेकर बाइज द रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस फार्मर, एंड बेकर को लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा. अब अगर बेकर के लिए प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पे जब वो अपने केक्स बनाता है, ठीक है, तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा. एंड अगर इसका प्राइस बढ़ गया, तो शायद लोग इससे केक्स ना लें. तो पहली बार वो अपने केक्स के प्राइस बढ़ाने से पहले बहुत सोचेगा. एंड अगर वो स्टिल अपने केक्स के प्राइस सेम भी रखेगा, स्टिल उसके मार्जिन में उसको प्रॉब्लम होगी. पहले वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाया, पहले उसका शायद ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, बट प्राइस बढ़ने की वजह से द प्रॉफिट वुड गो डाउन, हो सकता है उसको लॉस भी हो. तो यहाँ पे था 60 रुपीज का चल रहा था, एंड फार्मर को लग रहा था कि 60 से कम हो जाएगा, एंड इसको लग रहा था कि 60 से बढ़ जाएगा. तो इन्होंने क्या किया, दे बोथ ऑफ देम कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे सेड चलो ना आपका ना मेरा, हम 90 रुपीज पे कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि 90 रुपीज पे आप मुझको बेचना. 90 रुपीज पे ये बेकरी वाला बोला कि आई बाय इट. तो 90 रुपीज पे डील हो गई फिक्स. अब मार्केट का प्राइस चाहे 50 हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 हो, it doesn't matter. Both of them would be dealing at a price of 90 only, and that is one thing both of them are focusing upon. Now, if in the market the price turns out to be 50 rupees, ठीक है, वो तब भी 90 पर ही ट्रेड करेंगे, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू. बट अगर मार्केट में 50 रुपीज का वो हो गया, ठीक है, तो हु वुड बेनिफिट? द फार्मर वुड बेनिफिट, बिकॉज फार्मर को स्टिल 90 मिल रहा है, ज्यादा ही मिल रहा है, बिकॉज फार्मर का कंसर्न था द प्राइस वुड गो डाउन, बट स्टिल दैट पर्सन इज गेटिंग 90 रुपीज. बट लॉस किसको हो गया? लॉस बेकरी को हो गया, क्योंकि अब वो महंगे में खरीद रहा. तो hedging, it might not benefit both the parties, and same happens in the case of the future or the forward contracts as well. बट यहाँ पे मान लो अगर प्राइस 120 हो जाता, अगर मार्केट में प्राइस 50 के बजाय 120 चल रहा होता, हाँ, तो बेनिफिट किसको होता? तब बेनिफिट होता
इस बेकरी को, क्योंकि अब ये सस्ते में खरीद पा रहे हैं। आइडियली प्राइस जो है मार्केट में, सो दैट इज 120 रुपीज, बट उसको सिर्फ 90 में ही मिल रहा है, और लॉस हो जाएगा अपने ये बेचारे फार्मर का। वो बोलेगा काश मैं 120 रुपीज पे खरीद पाता, कहाँ मुझको लग रहा था कि 60 रुपए पे नीचे गिर जाएगी क्रॉप, बट 120 रुपए पे मुझको मिल रहा है। ठीक है, तो बोथ द सिनारियोस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं एक बार अच्छे से और क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज माई ड्राइंग इज वेरी बैड। ये हो गया अपना फार्मर, उसको मैंने एफ बोल दिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपना बेकर से, इसको मैंने बी बोल दिया, एंड 90 रुपीज का इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एंड नो मैटर ऑफ द मार्केट कंडीशन, एंड दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज हेजिंग, that they're trying to minimize their risk by taking opposite position. इसने लाइक सेल की पोजीशन और इसने बाय की पोजीशन, by taking opposite position. एंड सेम हमारा ये फ्यूचर मार्केट में होता है कि अगर हमको लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, सो देन वी बाय दी कॉन्ट्रैक्ट, एंड सामने वाले को लग रहा है कि प्राइस गिर जाएगा, ही सेल्स दी कॉन्ट्रैक्ट, एंड वहां पर ही एक ऑर्डर मैचिंग हो जाती है। ठीक है, वो सारी बात की बात है, बट दैट इज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है, अब एक पर्सन आ जाता है तीसरा। ठीक है, अब इस पर्सन को लाइक किसी से मतलब नहीं, ढीठ पर्सन है बिल्कुल, उसको ना तो इस मिलर से मतलब है, इस बेकर से मतलब है, ना इसको इस फार्मर से मतलब है, ना इसको इससे मतलब है कि अगर ये मान लो कि कम कमाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, या अगर इसको महंगे पे बेचना पड़ेगा तो इसकी कंपनी खत्म हो जाएगी। इसको किसी से मतलब नहीं, इज जस्ट कंसर्न कि पैसा बनाना, चाहे मैं इससे बनाऊं चाहे फार्मर से बनाऊं, ही इज एंटरिंग इनटू द मार्केट जस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ही हैज नो कंसर्न। ठीक है, अब मान लो मार्केट में मैंने बोला था कि 120 का रेट चल रहा है, ये मार्केट का रेट चल रहा है, ठीक है, 120 का रेट। अब ये जो इंसान है जो प्रॉफिट के लिए है, इसको हम पी बोल देते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट के लिए है, ये फार्मर के पास जाएगा, ये फार्मर को बोलेगा यार तुमने तो इसके साथ 90 का कॉन्ट्रैक्ट तो करा हुआ है, हाँ तुम इसको 90 पे बेच रहे हो। ठीक है, एंड मेरा भी काम कुछ ऐसा सही है। ठीक है, मान के चलो कि बेकरी वाला काम ही है मेरा। ठीक है, तो इसका मेन बेकरी का काम नहीं होगा, ये बीच में कोई इंटरमीडिएट जैसा बंदा होगा। ये बोलेगा कि मेरा काम भी तो मान के चलो कि बेकरी जैसा ही है, तुम अगर उसको 90 पे बेच रहे हो तो तुम मुझको भी 90 पे बेचो। ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। अब चलो 120 तो फार्मर अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फार्मर की मेन लाइफ क्या होती है, अपनी क्रॉप के बेसिस पे। अब 0 कमाने से अच्छा है, ठीक है, वो 90 कमा लेगा, क्योंकि पहले बस 90 कमा पा रहा था वो। अब अगर वो 90 के कॉन्ट्रैक्ट में और आ जाए तो एटलीस्ट 180 तो कमा पाएगा, तो इसका ये तो कुछ 120 जो इसके बात है दिल में, एटलीस्ट वो तो कुछ जाएगी। तब बोलते तो ये बोलता है फार्मर कि चलो ठीक है, अगर मैं 90 पे इस बेकरी वाले अंकल को दे रहा हूँ तो आपको भी लाइक मैं 90 पर दे देता हूँ। बट ये इंसान बहुत स्मार्ट है, ये 90 पर इसने यहां से खरीदा इसी फार्मर से, और मार्केट प्राइस पे ये बेच देगा, मार्केट प्राइस जो भी होगा। अगर मान लो कि बेचने के टाइम प्राइस 120 रुपीज ही रहा, तो सीधा इस इंटरमीडिएट को 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो यहाँ पे किसी और पार्टी को देगा। उसने इस फार्मर से खरीदा 90 पे एंड 120 पे इसको बेच दिया, बट बेचने के टाइम वो प्राइस 120 से गिर के सीधा 80 या 70 पे आ गया, तो इस बंदे को भी लॉस हो सकता है, तो इस बंदे को हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। ठीक है, स्मार्ट नहीं बोलूंगा आइडियली, एक ऐसा इंसान बोलूंगा, द पर्सन हु इज ग्रीडी, हु जस्ट वांट्स टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। उसको बस प्रॉफिट कमाना है मार्केट से, बस पैसा कमाना है मार्केट से, और कुछ नहीं। बोला कि 90 पे तो मुझको दे रहे हो तो 90 पे तो मुझको भी दो, एंड 90 का 120 पे वो वहां पर बेचाएगा। बट अगर प्राइस कम हो गया तो इसको भी लॉस हो सकता है, एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ स्पेक्यूलेटर who undertakes the process of speculation in the market, and speculation ट्रेडिंग में होती है मार्केट में।
ठीक है, दिस पर्सन इज कॉल्ड स्पेकुलेशन who enters into the market not for the purpose of avoiding risk but just to make profit. This person is a speculator. Then फिर इसके बाद क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है मार्केट में, ठीक है, एक और बंदा होता है मार्केट में यहाँ पे खड़ा हुआ. दिस इज द स्मार्टेस्ट पर्सन. ये बहुत अच्छा मतलब मार्केट को समझता है, बहुत स्मार्ट पर्सन है. ही हैज अ लॉट ऑफ पीपल इन हिज टीम. इसने अपने आदमी लोग हर जगह फैलाए हुए हैं, सारी मार्केट्स में फैलाए हुए, मतलब कि प्राइस जानने के लिए कि प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस कितना चल रहा है. तो इसने देखा एक दूसरी मार्केट है, मान लो ये मार्केट नंबर 1 है. इसने देखा एक मार्केट नंबर 2 है जहां पे जो रेट चल रहा है, एक और फार्मर है वहां पे, इसको हम F1 कर देते हैं. एक और फार्मर है जो 120 के रेट पे बेच रहा है, जो बेकरी को मान लो कि 120 के रेट पे बेच रहा है, ठीक है. इस बेकरी को हम B2 कर देते हैं, ठीक है, 120 के रेट पे बेच रहा है, ठीक है, लाइक किसी और जगह, ठीक है. अब ये बंदा बहुत स्मार्ट बंदा है. ये फिर से इस पुराने फार्मर के पास गया. उसने बोला यार जो पहला वाला फार्मर है वो तो बुद्धू है, 120 का मार्केट का रेट चल रहा है एंड वो स्टिल 90 पर बेच रहा है, ये तो बुद्धू है. उसने बोला कि तुम मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर. अब इसने बोला कि मुझको नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं करूंगा तो 120 पर ही करूं. अब इस स्मार्ट पर्सन ने बोला ठीक है मत कर, क्या जा रहा है मेरा, ठीक है. अब मैंने तो अपने आदमी मतलब कि बहुत फैलाए हुए हैं, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं किसी और मार्केट में चला जाऊंगा. बट ये सोच ले कि 90 रुपीज तेरे को मिलेंगे एक्स्ट्रा पर कॉन्ट्रैक्ट, तेरे को 90 रुपए की मतलब की लाइक डील हो रही है. तो फार्मर बेचारा कहता है यार ठीक है, मुझे अपनी बीवी बच्चों को संभालना है एंड ऑल. तो कहते चलो ठीक है, मैं आपके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. इसके साथ भी कर ही रहा था और स्पेकुलेटर के साथ भी कर ही रहा था, हाँ तो आपके साथ भी कर लेता हूँ. 90 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ भी इसने कर लिया. अब इसने 90 का खरीदा और इस B2 को बेच दिया. इसने यहां से अपना प्रॉफिट कमा लिया 30 रुपए का स्ट्रेट फॉर्म. एंड ऐसा ये बंदा क्या करेगा, ये सिर्फ एक मार्केट में नहीं करेगा, बहुत सारी मार्केट्स में सेम चीज करेगा. इस फार्मर से लेगा एंड बहुत मार्केट्स में बेचेगा. अब इसकी तरह कुछ और भी बुद्धू फार्मर्स हो सकते हैं, हाँ, जो 90 पर बेच रहे होंगे, कुछ हो सकता है जो 80 पर बेच रहे होंगे, ठीक है. एंड ऐसी प्राइस कंडीशंस वो देख लेगा कि कहाँ पे कम पे बिक रहा है जहां पर मैं खरीद लूं और कहाँ पे ज्यादा पे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, मैं वहां पर बेच दूं. तो स्पेकुलेटर के केस में क्या था, स्पेकुलेटर के केस में इसको लॉस भी हो सकता है बिकॉज वो खरीद के बेच रहा है एंड वो बाकी मार्केट कंडीशन नहीं देख रहा कि प्राइस बढ़ गया या फिर कम हो गया. वो एक ही चीज पे आके रुक गया कि 120 पे ही बेचूंगा एंड उसको लास्ट कंडीशन नहीं पता. बट ये जो पर्सन है, स्मार्टेस्ट पर्सन है, बहुत स्मार्ट है. ये पूरी गारंटी के साथ चल रहा है, ठीक है. क्यों चल रहा है, क्योंकि इसने अपने लोग फैलाए हुए हैं हर जगह, ठीक है. इसको पता है कि यही प्राइस चल रहा है और इसी पे ही बिकेगा, इसे अपने लोग फैलाए हुए. तो इसके लॉस होने का चांस सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम. और इस पर्सन को वी कॉल इट एज आर्बिट्रेजर. ये पर्सन होता है अपना आर्बिट्रेजर. तो पहला पर्सन था हेजिंग, who enters into a contract for the purpose of like reducing his risk. Then speculator who enters into the contract for the purpose of making profit. And then arbitrator, सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है, एक मार्केट में खरीदेगा सस्ते में एंड बाकी मार्केट्स में बेचेगा. सो ही इज आर्बिट्रेटर. तो दीज ये 3 लोग होते हैं मार्केट में, हेजर, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स. तो ये चीज यू नीड टू नो, ठीक है. बाकी विल